everyone, welcome to Yopedia and this is Shikha. So friends, if you are also shortlisted for UIIC AO post for finance and investment, this particular video is going to help you out to crack your HR round. As I'm going to provide you a list of most important expected HR question related to finance and investment specifically for your department. Right? So HR part is something which is accessing your knowledge, your personality, your confidence level, your communication skills and whatnot. Right? So it means you need to be better prepared for your HR round as well. As you are from finance and investment department, and if you're shortlisted for that, so these questions will help you out to prepare and to it is giving a skeleton of what type of questions can be there in your interview round. You can prepare these questions with your PDA mentors by taking different kind of HR mock sessions and technical mock sessions and even full mock sessions, right? Plus, you can download this documentation from your PDA panel and you can access it and read it out properly. So, let me give you the list of all the important HR questions in this particular video, which is very important from your interview point of view. So, this is AO post for finance and investment in UIIC, and these are the things we are going to be covered in this particular video. Starting with the generic HR question. Generic HR question is a part of your interview. First of all, introduction is the part of your interview. You need to be very smooth and very clear pattern format of the introductory part. That should be not too longer and too shorter, right? So I would say always include only relevant things, and to watch out the full video you can go for the Your PD Education. You will find out what is the format of introduction, and even we have told you like number of times in different videos what is the format of introduction, right? I would say like other than introduction there are a lot of generic questions. What are your hobbies, your interests, your strength, your weaknesses? What is your mission and vision in your life? What is the mission and vision of your UIIC? Why do you want to join UIIC and why you're going to be prioritize this? What motivates you to join, right? So at that moment you can highlight the prestigious organization and the important things, career growth opportunities, job diversification, these kinds of factors in by considering the UIIC cultural values and all these things, right? See, even this is a question basically, how are you going to be prioritize the fast paced environment? What motivates you to work in the insurance industry? Your vision, how do you handle conflicts in a professional setting, and what do you know about UIIC work culture and values, right? Coming towards role specific question. Now your role is as in finance AO, as in finance and investment. So they will ask you questions related to finance, related to investment, related to policies, and different kind of questions related to your roles and responsibility. Some are the direct questions, like in UIIC as an AO finance and investment, what can be your roles and responsibilities? What can be your duties? How you are going to be contributing UIIC? Apart from this, these are the some I would say important question. As you can see on screen, this is what are the financial statement, की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती हैं और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में कैसे हेल्पफुल है, ठीक है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल है इंश्योरेंस कंपनी में? डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट बताइए इंश्योरेंस कंपनीज में. क्रेडिट वर्थीनेस को आप कैसे एक्सेस करेंगे इन्वेस्टमेंट में, एंड फाइनेंशियल रेशियो कैसे यूज होती है इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में, ठीक है? इम्पैक्ट बताइए इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन का इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट में. रिस्क को कैसे इवेल्युएट करेंगे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में. स्ट्रैटेजीज बताइए इंश्योरेंस कंपनीज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए क्या यूज करती हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्वेंसी मार्जिन एंड यूआईसी कैसे बैलेंस करता है रिस्क एंड उस पे जो रिटर्न इन इट्स इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो. हाउ डू ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स इंपैक्ट द इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ इंश्योरेंस फर्म्स, राइट? क्या रोल प्ले करता है री इंश्योरेंस इन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, एंड टैक्सेशन एस्पेक्ट कैसे एप्लीकेबल है इंश्योरेंस कंपनीज पे. गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे इन्फ्लुएंस कर रही हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ इंश्योरेंस फर्म, सॉरी, राइट? कमिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन अबाउट यूआईसी. सो क्वेश्चन अबाउट यूआईसी क्या है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दैट, हु इज द करंट चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दैट, what are the key products and services offered by UIIC, what are the current things on which UIIC is focusing. So these are the very important part of related to UIIC, that these can be the important HR question, right? Rest, what is the vision of UIIC, what are the major challenges it is facing in current insurance market, and can you give name some of the recent developments or initiative taken by UIIC. UIIC का क्या रोल है गवर्नमेंट बैंक इंश्योरेंस स्कीम्स में, ठीक है?
इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बेसिकली इट कैन बी कि इंश्योरेंस क्या होती है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंसेस के बारे में बताइए, राइट। दिस कैन बी सम बेसिक क्वेश्चन रिलेटेड टू इंश्योरेंस। जर्नल इंश्योरेंस कैसे डिफरेंट है लाइफ इंश्योरेंस से, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस बताइए, मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट इन इंश्योरेंस क्या होती है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट से क्या समझते हैं आप, और अटमोस्ट गुड फेथ क्या कंसेप्ट है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में, इंश्योरेंस फाइनेंशियल प्लानिंग में कैसे हेल्पफुल है, एंड आप क्या समझते हैं प्रीमियम, पॉलिसी होल्डर एंड इंश्योरेंस से। कैन यू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फ्री इंश्योरेंस, राइट। ये कुछ क्वेश्चंस हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड। इंश्योरेंस रेगुलेशंस इन इंडिया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग द इकोनॉमी, एंड इंडियन इंश्योरेंस रेगुलेशंस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। दैट इज समथिंग रिलेटेड टू करंट थिंग्स एंड यू मस्ट अवेयर अबाउट दैट कि इंडिया में इंश्योरेंस रेगुलेशंस क्या हैं और उनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल IRDAI कैसे रेगुलेट करती है इंश्योरेंस कंपनीज को। प्रोविजंस बताइए इंश्योरेंस एक्ट 1938, इसका मतलब ये हुआ कि आपको इंश्योरेंस 1938 एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्या है वो, क्या चीज ऑफर कर रहा है, वो क्या बताना चाहता है, उसके बाद ही आप उसके प्रोविजंस को डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDIs क्या होती है, सॉल्वेंसी रेशियो क्या सिग्निफिकेंस होता है इंश्योरेंस कंपनीज में, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताइए इंश्योरेंस ऑप्समन इन इंडिया, ठीक है, कौन होता है ये और उसकी क्या ड्यूटीज होती हैं। IRDAI की गाइडलाइंस कैसे इंपैक्ट करती हैं क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस, जो कि एक कंसेप्ट है बेसिकली आपका इंश्योरेंस सेक्टर में। आप क्या समझते हैं पॉलिसी लैब से, और IRDAI के जो रूल्स हैं वो क्या है लाइक रिगार्डिंग पॉलिसी रिवाइवल। कैन यू एक्सप्लेन द ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, एंड क्या इम्पैक्ट है इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2021 का इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर पर, ठीक है। टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, so there are different kind of insurance policies and they can ask you questions like that. What do you mean by insurance, and what are the different type of insurances basically. What do you mean by life insurance, what do you mean by health insurance, I would say marine insurance, crop insurance, travel insurance कैसे काम करती है basically, ठीक है। crop insurance कैसे फाइनेंशियली स्टेबल बनाती है फार्मर्स को, और जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो इंडिविजुअल से कैसे बर्डन को रिड्यूस करती है। दीज आर सम इंपॉर्टेंट एंड मेजर क्वेश्चंस रिलेटेड टू पॉलिसीज, सॉरी इंश्योरेंस पॉलिसीज बेसिकली, ठीक है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्या है और आपको क्यों खरीदनी चाहिए। साइबर इंश्योरेंस बेसिकली क्या होती है और वो आजकल इतनी इंपॉर्टेंस क्यों गेन कर रही है, एज वी डू हैव साइबर थ्रेट्स, वी डू हैव साइबर कंसर्न्स, सो हमारे साइबर इंश्योरेंस क्या होती है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको हमें थोड़ा सा साइंस से अलाइन करना है। Claims and underwriting in insurance, these are two concepts in insurance industry. If you are from that and if you are going in that, you must aware about these two things. प्रोसेस क्या है इंश्योरेंस क्लेम को फाइल करने का, कि क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस कैसे काम करता है इंडिया में, एंड कॉमन रीजन बताइए जो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। इंश्योरेंस एडवांसमेंट में ये कब यूज होता है, क्या होता है बेसिकली, एंड वो कब यूज होता है। अंडरराइटिंग कैसे वर्क करता है इंश्योरेंस सेक्टर में, बेसिकली पता होना चाहिए कि वो है क्या, एंड क्या रोल है एक्चुअली इन इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस कंपनी रिस्क को कैसे एक्सेस करती है बिफोर इशूइंग अ पॉलिसी। को पेमेंट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में क्या होती है। रोल ऑफ इंश्योरेंस इन इकोनॉमी, obviously these are very important question कि how does insurance sector or industry is contributing towards the Indian economy, what are the challenges it is facing, what are the opportunities does it have, right, these are some important questions. I would say health insurance कैसे financial burden reduce करता है, role of insurance in promoting entrepreneurship, challenges बताइए जो Indian insurance sector face कर रहा है, and country की GDP को penetrate करने के लिए insurance कैसे affect करता है। कस्टमर हैंडलिंग की मैं बात करूं, सो सी यू हैव टू बी कस्टमर सेंट्रिक व्हेन यू आर गोइंग फॉर दिस पोस्ट AO, एंड स्पेसिफिकली इन द फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, सो देयर वुड बी लॉट ऑफ रिस्क वुड बी इंक्लूडेड इन दैट यू नीड टू बी टेक इनटू कंसिडरेशन। UIC की इंश्योरेंस पॉलिसी को अगर फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन करना है तो कैसे करेंगे, सिंपल टर्म्स में। पॉलिसी होल्डर को कैसे रिक्वेस्ट करेंगे पॉलिसी मॉडिफिकेशन के लिए। जो AO होता है बेसिकली वो कैसे ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है, कैसे कंफ्लिक्ट मैनेज करता है, कम्युनिकेशन को कैसे एनहांस करता है, पॉलिसी होल्डर से कैसे बात करता है अगर कोई पॉलिसी को उसको चेंज करवाना है या मॉडिफाई करवाना है, राइट। दीज आर सम क्वेश्चंस। आफ्टर दैट आई वुड से यस, पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन को एरर फ्री कंप्लीट कैसे करवाया जा सकता है, कस्टमर अगर आप हैंडल कर रहे हो बेसिकली। स्ट्रैटेजीज क्या है जो आप
implement करोगे to increase customer retention in UIC, right? Risk assessment, see जो AO है वो कैसे हेल्प करता है रिस्क असेसमेंट में, एक पॉलिसी को इशू करने से पहले, एंड क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए या AO को लेनी चाहिए बेसिकली फ्रॉड को सस्पेक्ट उसको जब हो जाता है उस एक्टिविटी को क्लेम करने के लिए, ठीक है? डिफरेंशिएट कीजिए फ्रॉड क्लेम्स में, जेन्युइन उसमें क्लेम्स में कौन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज होते हैं टू डिटेक्ट फ्रॉड क्लेम्स, बेसिकली उनको डिटेक्ट करने के लिए कौन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज होते हैं. That is also playing a very important role, tools and technologies. What role does data analytics play? Data analytics क्या role play करता है basically risk assessment में for insurance policies? What are the red flags an AO should look for while processing claims? And AI और machine learning कैसे help करते हैं detecting insurance fraud? ठीक है? Leadership से question आते हैं. See, leadership, behavior, these are very important part of your HR when it has to be access your personality. राइट? तो लीडरशिप क्वालिटीज क्या होती हैं, लीडर कौन होता है, लीडरशिप के क्या की ट्रेट्स होते हैं बेसिकली, ये आपको पता होना चाहिए पहली बात. दूसरी चीज, एज एन आप AO जा रहे हैं तो ठीक है आप अपने आप में एक लीडरशिप क्वालिटी को परफॉर्म कर रहे हैं वहां पे, राइट? दैट यू नीड टू बी लाइक टेक इनटू कंसिडरेशन. तो व्हाट कैन बी द इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बेसिकली आप कोई ऐसा टाइम बताइए जब आपने लीडरशिप रोल लिया हो, ठीक है? उसके अलावा इंपॉर्टेंट डिसीजन आप अंडर प्रेशर कैसे बनाते हैं, कैसे आप करेंगे, मल्टीपल प्रायोरिटीज को कैसे हैंडल करेंगे, ये आपने किया है, कोई ऐसा इंस्टांस बताइए. आपको क्या इंस्पायर करता है और क्या मोटिवेट करता है जो टीम सेटिंग को, बेसिकली आप कैसे इंस्पायर करेंगे और उनको मोटिवेट करेंगे अपनी टीम सेटिंग को मतलब काम करने के लिए बेसिकली, ठीक है? हाउ डू इंश्योर दैट योर डिसीजन अलाइन विद कंपनीज गोल, आप ऐसे कौन से डिसीजन ले सकते हैं जो कंपनी के गोल को भी फुलफिल करे और आपकी लाइक पोजिशन को भी जस्टिफाई करे. हैव यू एवर हैड अ मैनेज अ कन्फ्लिक्ट, ठीक है? आपने कोई कंफ्लिक्ट मैनेज किया हो अपनी टीम के साथ और आपने कैसे हैंडल किया है, कोई सिचुएशन बताइए जहां पे आपको क्विकली कोई अनएक्सपेक्टेड चेंजेस को बेसिकली लाइक कंसीडर करना होगा और आपको अडेप्ट करना होगा. बिहेवियरल पार्ट्स रिलेटेड आई वुड से, आपने किसी डिफिकल्ट कलीग या डिफरेंट कलीग से जहां पे डिफरेंसेस ऑफ थॉट्स हैं वहां पे आपने डील किया हो, ठीक है? कोई कंफ्लिक्ट हुआ हो, कम्युनिकेशन गैप को कैसे लाइक रिमूव किया है, आप कितने अकाउंटेबल हैं बेसिकली, व्हाट विल बी योर बिहेवियरल अप्रोच अगर आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है, ठीक है? आपको फीडबैक मिलते हैं या क्रिटिसिज्म मतलब फेस करना पड़ता है तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या आपका रिस्पॉन्ड रहेगा उसके रिलेटेड, ठीक है? व्हाट वुड बी योर अप्रोच, राइट? सी एज जस्ट डिस्कस्ड विद यू, इफ यू मेक अ मिस्टेक एट वर्क आप कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है? आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग से, अगर मैं बोलूँ कि आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की है काम से रिलेटेड तो आप कैसे लाइक हैंडल करेंगे या कैसे आपने हैंडल की थी. वर्क रिलेटेड बेसिकली अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्स हैं तो आप कैसे मैनेज करेंगे, आपने कोई रेजिस्टेंस फेस की हो कलीग्स के साइड से, न्यू आइडिया कैसे मैनेज करेंगे, एंड अर्जेंट क्राइसिस को कैसे मैनेज करेंगे, अफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट को अपने डेली टास्क में हाउ डू यू मैनेज. टीम वर्क से क्वेश्चन बेसिकली, हाउ डू यू कॉन्ट्रीब्यूट टू पॉजिटिव एनवायरमेंट, ठीक है? डाइवर्स टीम क्या होती है, कैसे डिफरेंसेस को हैंडल करेंगे आप, टीम वर्क क्या होता है, टीम मैनेजमेंट क्या होता है, टीम कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ठीक है? हाउ यू गोइंग टू बी अकाउंटेबल टू योर टीम एज वेल, राइट? आप अपनी टीम को कैसे इंस्पायर करेंगे, कैसे मोटिवेट करेंगे काफी टाइम तक काम करने के लिए, इफेक्टिवली काम करने के लिए, एफिशिएंटली काम करने के लिए, राइट? दीज आर सम क्वेश्चंस एंड यस, आप क्या स्टेप्स लेंगे कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए अपनी टीम के साथ, colleague who is not contributing equally, and strategies to build strong professional relationship, handle a team member who is not meeting deadlines. Ethics and compliance, yes, ethical standards are very important in any organization, specifically in the insurance industry, UIIC. So how to ensure compliance with like company policies and regulations, ठीक है? And आपने कोई unethical behavior if you have noticed, how are you going to be manage it out, right? Describe a situation where you had to take a stand for what was right, and what steps would you take if you witnessed financial fraud in the workplace. Have you ever had to report a compliance issue, and yes, ethical challenges बताइए जो AO as in UI से आप face कर सकते हैं. Coming towards the miscellaneous question, now these miscellaneous questions are related to all the terminologies, concept in UIC, in insurance sector, insurance industry basically, and even the the customer handling, and as you're going for the finance and investment, so some of the questions related to that also, right? So these are the mixed bag of the miscellaneous question that other than all these domains
what can be the expected miscellaneous questions. So yes, this is principle of indemnity. क्या होता है? Principle of contribution, principle of subrogation, principle of proximate cause, loss minimization, and आप कैसे principles को fairly ensure करेंगे insurance contract में, right? What happen if insurance contract violates one of these principle? Advantages बताइए. Private insurance companies का have वो PSU insurance companies like UIC. And yes, what strategies should UIC adopt to stay ahead of its competitor? Key growth drivers for the Indian insurance industry, and how will technology, AI, big data, blockchain shape the future of insurance? ठीक है. डिजिटल इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म लाइक पॉलिसी बाजार एंड और भी बहुत सारे ऐसे लाइक प्लेटफॉर्म हैं, उनका क्या रोल है, वो क्या ऐसा ऑफर करते हैं, वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं ऐसे लाइक इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज को एंड ट्रेडिशनल इंश्योरेंस कंपनीज को. इन सच स्टार्टअप्स कैसे शेप कर रहा है फ्यूचर ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एंड बैंकिंग सेक्टर कैसे सपोर्ट कर रहा है इंश्योरेंस ग्रोथ इन इंडिया. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या रोल प्ले करती है, इन्फ्लेशन क्या रोल लाइक इम्पैक्ट करती है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, री इंश्योरेंस कैसे हेल्प करती है रिस्क मैनेजमेंट में, यूआईसी सिर्फ जनरल इंश्योरेंस पर ही क्यों फोकस करता है, री इंश्योरेंस क्या होती है, नो क्लेम बोनस एंड हाउ डज इट वर्क, कैशलेस मोटर इंश्योरेंस and what is the benefit, how does it benefit to the policy holder, cashless hospitalization facility work, how do critical illness insurance policy different from regular health, and आयुष्मान भारत योजना क्या इम्पैक्ट डालती है बेसिकली प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर पे, कॉमन रीजन बताइए हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम जब रिजेक्ट हो जाते हैं, डिफरेंस क्या है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस में, ठीक है. व्हाट डज ट्रिप कैंसिलेशन कवरेज इन ट्रैवल इंश्योरेंस इंक्लूड, इसका मतलब आपको ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है. अर्थक्वेक इंश्योरेंस वर्क अंडर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, ठीक है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कैसे काम करती है, क्या होती है, एंड मरीन इंश्योरेंस के अंदर कौन से मेजर रिस्क आप कवर करते हो, क्रॉप जो इंश्योरेंस है बेसिकली दैट हाउ इज गोइंग टू बी हेल्प यू आउट बेसिकली, ठीक है, इन स्पेसिफिकली फार्मर्स को वो कैसे हेल्प करता है, प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस बेनिफिट मैन्युफैक्चरर्स, डिफरेंस बिटवीन सम एश्योर्ड एंड सम इंश्योर्ड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म अंडरराइटिंग. हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे कि अंडरराइटिंग और क्लेम्स जो कंसेप्ट है उनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सरेंडर वैल्यू एंड मैच्योरिटी वैल्यू, व्हाट इज द फ्लोटर पॉलिसी इन हेल्थ इंश्योरेंस. सो दीज आर सम मिसलेनियस पार्ट ऑफ दिस फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट HR राउंड, HR part basically, right? So these are all important questions related to UIIC AO as in finance and investment, which is covering different domain, behavioral, teamwork, problem solving, management, related to UIIC, related to like terms and conditions, policies, programs, generic HR questions, and question related to your roles and responsibility that you must prepare, right? So you can access this documentation, you can download it from your PDF panel and read it out, and please make sure you are preparing these questions with your PDF mentors by taking different kind of HR sessions and technical sessions so that you can ace your interview in first round, right? So I would say yes, if you have any query or any doubt, you can reach out to us. Till then, all the very best.